So, welcome, Prashant. Uh, Prashant Nair. He is based out at Dublin in Ireland, and he's probably in the top students of mine who have been moved to Ireland. And he started when he came to me. The plan was something else. Now he's gonna be revealing all those information over here. And of course, as people know that we are making this series to spread awareness in the society about the broad studies and the kind of challenges students are going through. So, welcome to the show, Prashant. Let's start with my first, question to you is like how you started your journey, as in when did it come to your mind that you have to be in Ireland or you have to pursue your education? Please go ahead. Thank you, sir, for the opportunity. First and foremost, I think it's very important to recognize what you are doing for a lot of students. So, just like any other student who came to you or who I was in India, right? So, for the longest in India, I was doing a lot of work in technological companies. I was doing a good job there. I mean, I was having a good life. I come from a very educational driven South Indian family where they always told me that education is your way out of anything in life. So, if you study more, you'll always get more. There reached a point where I thought, I think I have done enough in India. It's time for me to move abroad. Most importantly, I was looking to move to a country called as Canada because a lot of people were getting PR at that point of time. So I think you would be the best person to tell the story because I think your mom, I think my mom reached out to you Correct, very randomly on a day. correct. So I'll tell you, I think back in 2017 or Hmm. 18, I'm little not sure about it. So I got a random call, generally, like as we are on a different platform like Google or Just Dial, and students generally call us about whether you offer IELTS training or study abroad kind of an option. So I got a call one day from your mom, and that's typically, it's like typical Malayalam women, like the way she's been inquiring about like what are the modules you are training. And I said like who exactly won the training? And she said about you. And of course you were in UK if I'm not wrong. Hmm. And then again she called me after a month as my son came all the way from UK and then he wants to join you. So you came along with her. The way I really like the way she was so curious about Canada PR, and then she was getting this information. And probably since I've been training so many people and I know the community across India, I find the most aware community is Malayalam community. Say people from Kerala really they are investing, a good amount of money on their children's education, and Hmm. that's really great about Malayalis. And I know you started with Canada, and then we moved to a different direction altogether. So tell us about like what happened then next. You know that, Uh, right? yeah. So I think I was working with Wipro and then I was in UK for a 6 months project. So my mom was actually asking me, if you like life over there so much, why don't you move abroad? I was also thinking, I was like, हाँ ठीक है देखते हैं मतलब it's too premature अभी मैं तो first time गया हूँ बाहर तो let me Correct. explore. After 6 months I came back and the whole Canada PR boom had just started. Hmm. Okay. And I came to you for IELTS training, and thanks to your training, I decently did well in exams, Yes. and I cleared my IELTS, and all the documents were very clear, and I got my Canada PR within 7 or 8 months of waiting. Okay, and Correct. once I got my Canada PR, I saw a lot of my friends also move to Canada at the same time. The Correct. same people who I studied with you in the classes, a lot of Correct. people got them, and Correct. then I thought मतलब नहीं नहीं बोल के यार साल में 10,000 11,000 लोग तो जा ही रहे हैं कनाडा तो उसमें से Yes. मैं भी जाऊंगा तो फिर मतलब तो नहीं रहेगा फिर वापस वो मेरा स्ट्रगल हो जाएगा मिडिल क्लास वाला Correct. जहाँ पे इतने सारे लोग जा रहे हैं मतलब मेरे दिमाग में यही चल रहा था यार ये मैं विरार लोकल तो नहीं चल रहा फिर से Okay. Okay. ठीक Right. है Right. तो दैट्स वेयर माय माइंडसेट चेंज्ड अ लिटिल बिट वन डे आई वाज जस्ट यू नो आई वाज जस्ट थिंकिंग एंड इन बिटवीन आई गॉट मैरिड. Hmm. My wife is a gold medalist in finance from SIS college, and both of us were discussing, and both of us were like, we have enough savings with us. Hmm. Okay, we are very young. So I got married when I was 27, 28, Right. and my wife was 25, 26. Hmm. And both of us decided that, you know what, I think we have age on our side. We have already studied bachelor's and master's in India. Why not go for a master's more specific abroad? Correct. Okay, so what will happen is that if you study something more specific, you will get better opportunities in specific fields what you want to do. That is where I started looking for countries like Australia, UK, US, New Zealand, Australia.
So these were my top countries. Ireland was never in picture. Okay, Correct. I was just looking in countries like Australia. I was basically looking at Australia because I thought I'll go and play cricket in summer. Okay. Okay, that was my whole idea Yeah. of moving abroad for education. Perfect. And then after I did a lot of research and after I spoke to you, I realized, you know what? I think Ireland is a better country than most of it. And the obvious reason being the master's is only 1 year. Okay, after 1 year, you can straight away apply for a job or get for a job. Correct. Once you get it, then you have to stay 4 years in the 21 months in the country to get a PR. And Okay. I thought a UK PR, UK or an Irish PR is always or slightly better than a Canadian PR. Okay. That was my thinking at that point of time, which still remains largely the same. Right. So which course have you opted for? I mean, what was your background? I think were you from a technical background and you were working with Wipro, if I'm not wrong? And Correct. then what course you have chosen? What are your research? Why UCD? And of course, you said about why Ireland. Yes, please go ahead. Yeah. So I think I always had a technical plus business background. So I did my engineering, so I definitely knew what technical side of work I was doing. But in Correct. Wipro, I was more towards the business side of things. Right. When I say business side of things, I was working with companies who were involved in data analytics. A lot of companies working with data analytics. So I was a bit of technical and business. Okay. My whole idea of doing a course in Ireland कि मैं हमेशा ऐसा कोर्स देख रहा था जहां पे मैं बिजनेस को टेक्निकल के साथ कंबाइन करूं और Okay. मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कुछ करना था कंपनीज के लिए रादर देन कि 3 महीने में पीएनएल में कैसे मैं अफेक्ट करूं कोई भी कंपनीज को। तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए देखना चालू किया तो 3-4 कोर्सेज मैंने जीरो डाउन किए थे और मैंने इंडिया में ऑलरेडी एमबीए कर चुका था मैं। तो Okay. मुझे ऐसा नहीं था कि बिजनेस के बारे में पता नहीं था कैसे बिजनेस करते करके। Hmm. तो मैं जब आयरलैंड के बारे में गूगल कर रहा था और पढ़ रहा था और लोगों से भी बात कर रहा था यहाँ वहां Hmm. तो मुझे पता चला आयरलैंड में दो कॉलेज है जो सबसे टॉप के हैं एक मेरा कॉलेज और एक टीसीडी। That ये is दो कॉलेज है। Trinity you're talking about, right? करेक्ट ट्रिनिटी Oh, इट्स कॉल्ड एज ट्रिनिटी कॉलेज सो Dublin. इट्स कॉल्ड Yes. एज टीसीडी ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन टीसीडी। Correct. Correct. तो आई लुक्ड इनटू दीज टू कॉलेजेस एंड आई स्टार्टेड सीइंग व्हिच आर द कोर्सेस व्हिच आर रेलेवेंट टू मी। Okay. ठीक है सो बोथ दिस यूनिवर्सिटीज ऑफर क्लोज टू 51-52 कोर्सेस। Right. अभी सब मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है जो मेरे Correct. लिए रेलेवेंट है वो क्या है। तो Correct. आई जीरो डाउन ऑन 3 कोर्सेज जैसे एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एक है डेटा एनालिटिक्स Okay. तीसरा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। Okay. और ये तीनों कोर्स का मैंने रिक्वायरमेंट देखा और Hmm. तीनों का कोर्स का रिक्वायरमेंट समथिंग सिमिलर था कि 5 साल एक्सपीरियंस चाहिए मतलब मेरे कोर्स में तो 5 साल एक्सपीरियंस चाहिए था बट बाबी तो नहीं चाहिए वो। Right. तो मैंने देखा कि मेरे को जो कोर्स सबसे ज्यादा पसंद आया है और Hmm. जो मुझे लगता है कि मेरे लिए एकदम सूटेबल है Hmm. वो था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। Right. तो मैंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चूज किया यूसीडी में। Okay. 1 ईयर का कोर्स है। मेरे मेरे क्लास में एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स वाज अराउंड 30 years। 30 years. Okay. So you were हाँ you must be the youngest one. आई वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट Okay. बट नॉट एग्जैक्टली द यंगेस्ट ऑल्सो मेरे Okay. से भी एक Okay. दो जन कम थे। Okay. बट Okay. यस मुझे ऐसा भी नहीं फीलिंग चाहिए था कि मैं कहाँ बच्चों के बीच में बैठ के पढ़ रहा हूँ क्योंकि Right. मैं ऑलमोस्ट 8-9 साल का वर्क एक्सपीरियंस विद बिग एमएनसीज लेके जा रहा था। तो Correct. मुझे वैल्यू फॉर मनी चाहिए था। Right. तो इसलिए मैंने यूसीडी में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कोर्स चूज किया। Perfect. तो आफ्टर आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन व्हाट एग्जैक्ट मॉड्यूल्स आई एम गोइंग टू स्टडी दीज आर द Hmm. मॉड्यूल्स व्हिच आई वांटेड टू स्टडी। Okay. जैसे वन ऑफ द मॉड्यूल्स आई स्टडीड वाज कॉर्पोरेट एंड पब्लिक स्ट्रेटजी। Okay. ठीक है व्हाट बेसिकली डील्स विद दिस अगर आप एक कंपनी हो और एक गवर्नमेंट कंपनी है मतलब Right. यहाँ पे ज्यादातर गवर्नमेंट एंटिटीज है। Correct. ठीक है जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया वाटर बोर्ड हो गया अगर ये कंपनी अगर डेटा यूज करके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो Hmm. कैसे बनाएंगे। ठीक है Okay. क्या क्या पब्लिक पॉलिसीज प्ले में आएगा। Okay. ऐसा तो नहीं है नहीं मतलब मुझे कल सुबह उठ के कबूतर की बिरयानी खानी है जैसे विजय राज बोलता है वैसा तो नहीं होगा ना ये। Right. Right. Absolutely. Yeah. तो गवर्नमेंट Correct. में पब्लिक का पैसा है तो ये Hmm. पब्लिक का पैसा कैसे यूटिलाइज करना है ये सब Hmm. मैंने वो मॉड्यूल में सीखा। Hmm. सिमिलरली मेरे मॉड्यूल में एक और था डिसीजन मेकिंग Okay. और नेगोशिएशन। Hmm. अगर आपके पास एक सिचुएशन है 4 रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है डिसीजन के तो आप कौन सा चूज करोगे और वो कैसे चूज करते हैं। तो Okay. उसके सब बारे में मैंने पढ़ा था और आई थिंक मेरा 1 ईयर ऑफ मास्टर्स एक झटके में चला गया मुझे पता भी नहीं चला कि एक साल कब खत्म हो गया क्योंकि यूसीडी का टीचिंग पैटर्न बहुत अच्छा है और बहुत स्ट्रिक्ट पैटर्न है उनका। Okay, so I just wanted to know for our viewers हम्म that when you compare the what you call as in modules, if the हम्म same module would have been in India, strategic हम्म management, अगर इंडिया में अगर हम्म कहीं पे रहे समझिए हम्म किसी बड़े कॉलेज में, हम्म be it in मुंबई और दिल्ली,
So, I mean, what is the difference between that curriculum which is there in UCD and college in India, Hmm. and in what ways that curriculum had helped you to get a job in a Ireland market? To be fair, the curriculum is quite similar in India and UCD, but the Mhm. difference is the application bit of it. Okay, ठीक है. The most important bit in UCD, what I felt was the teaching. okay, Okay, so I am the kind of a person. So this worked for me. I'm not sure how will it work for other people. right, इन इंडिया में कैसा है, आपको जब पढ़ाते हैं लेक्चरर पढ़ा के चला जाता है और वो आपको correct, असाइनमेंट दे देता है, बोलेगा कि जैसे मैं एक बी स्कूल में था, Hmm. तो वो एक बोल देंगे कि ये असाइनमेंट है, ये आप पढ़ो और ये करो. correct, ठीक है. यहाँ पे करिकुलम थोड़ा सा मतलब पढ़ाने का तरीका तो सेम ही है. Hmm. ठीक है, जैसे इंडिया में टीचर पढ़ाती है यहाँ पे भी टीचर ही पढ़ाएंगे. बट वो लोग जैसे ही पढ़ाते हैं, आपको जो भी मतलब जो भी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होता है उसके लिए वो एक अलग सेशन रखते हैं. जैसे मैंने अभी सीखा था कि दो कंपनी को खरीदते कैसे बेचते कैसे हैं. तो correct, तीन चार बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके आए थे, तो उनको पूछा अगर आपकी कंपनी कोई खरीदना चाहता है तो कैसे खरीदेगा, क्या Hmm. प्रोसेस है. Hmm. तो आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में ज्यादा बताते हैं यूसीडी में. और Okay. हमेशा से यूसीडी एक प्रैक्टिकल कॉलेज ड्रिवन रहा है. वो लोगों को सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाते. Hmm. दे ऑलवेज बिलीव दैट व्हाटएवर यू लर्न नीड्स टू हैव अ प्रैक्टिकल इम्पैक्ट ऑफ इट. Approach, yes, correct. या. And the other question to you is, for example, a lot of students, the experienced student, they go for education or just to add values to their resume. They wanted to pursue master, so they generally invest on their skills, as in they themselves is a sponsor. करेक्ट. But most of them are also looking for the part-time jobs. So how is Ireland in terms of are they welcoming Indians? Are they offering part-time jobs to Indians like that? Yeah, I mean, Ireland is a very friendly country. If I'm being very honest, पूरे यूरोप में इकलौता देश है जो इंग्लिश बात करता है. ठीक Okay. है. यूके इज नॉट नो लॉन्गर पार्ट ऑफ यूरोप, सो आफ्टर ब्रेग्जिट यूके इज डिफरेंट, सो लेट्स Correct. नॉट काउंट यूके. Yes, ठीक है. yes, yes. बाकी पूरे यूरोप में 35 कंट्री में सिर्फ इकलौता देश है जो इंग्लिश बात करता है, वो है आयरलैंड. Right. ठीक है. सबसे Right. पहले आपका लैंग्वेज बैरियर नहीं है यहाँ. Correct. सो एंड इन आयरलैंड पॉपुलेशन इज अराउंड 5 मिलियन. ओके. Okay. Okay. 5% ऑफ द पॉपुलेशन इज एशियंस. ओके, Okay. जिसमें से क्लोज टू 3% आर इंडियंस. So Indian dominating, as in terms of Asia, हाँ, Indians are ऑब्वियसली dominating. मतलब हाँ, 5% में मोस्ट ऑफ देम आर इंडियंस. देन 3% तो यू, Indians है. हाँ. हाँ, देन यू हैव पाकिस्तानीज, श्रीलंकन्स. Okay. चाइनीज ज्यादा नहीं है. चाइनीज Okay. यूजुअली आके पढ़ के चले जाते हैं चले उनके देश जाते में. हैं. Correct. हाँ. जापानीज बहुत कम है. बस हाँ, मेजरली तो यही है. इन टर्म्स ऑफ कल्चर आयरलैंड इज वेरी वेलकमिंग. Okay. बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे. मतलब मैं यहाँ पे अभी 5 साढ़े 5 साल से हूँ. मतलब आई टचवुड आई हैव नेवर फेस्ड इशू ऑफ रेसिज्म, या Okay. मुझे कभी किसी ने मेरे कलर के लिए या फिर मेरे लुक्स के लिए कभी किसी ने मुझे नीचा नहीं दिखाया है, ना Fantastic. मुझे कुछ उल्टा बोला है. Hmm. इन टर्म्स ऑफ पार्ट टाइम जॉब, आप जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे तो आपके उसके आजू बाजू में बहुत सारे दुकान हैं. Hmm. जैसे सुपर मार्केट्स हैं, कॉफी Correct. शॉप्स हैं, Correct. होटल्स हैं. Correct. आप जाके अपना सीवी दे सकते हो. अगर उन वहां ओपनिंग है तो जॉब मिल जाता है. Correct. वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि अरे यार तू तो इंडियन है, तुझे कैसे नौकरी दे, हम एक लोकल को नौकरी देंगे. मतलब ऐसा सब बात यहाँ नहीं होता. Okay. Okay. ठीक है. वो सुपर 30 में जैसे वो बोलते ना, सिर्फ राजा का बेटा राजा नहीं Right. बनेगा. Correct. Correct. हाँ. हाँ हाँ हाँ. तो यहाँ Right. पे आपके पास स्किल है, आपको नौकरी मिल जाएगी. Hmm. मतलब मैं जब स्टूडेंट था तो मतलब मैं अभी बोलते वक्त मुझे बहुत हंसी आती है. मतलब मैं इंडिया में अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, ऐसा नहीं था कि मैं पैसा नहीं कमा रहा Right. था. Right. Right. तो बट मैंने यहाँ पे भी छोटी मोटी नौकरी की. मैंने कॉफी शॉप में वेटर का काम किया है. ठीक है. Okay. होटल में प्लेट व्लेट उठाया है. Okay. सुपरमार्केट मेडिकल फार्मेसी में मैंने लोगों को आइल दिखाया कि यहाँ पे ये मेडिसिन मिलता है, वहां पे वो मेडिसिन मिलता है. Right. 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 और मतलब इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके पास ईगो नहीं होना चाहिए. मतलब Absolutely. मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, ये जो भी बच्चे देख रही है उनके लिए वार्निंग है. कभी कभी क्या हो जाता है ना, उनको ऐसा मन में आता है यार इससे अच्छा तो मैं इंडिया में था, माँ बाप के साथ रह रहा था, Correct. कुछ मेरे को जरूरत नहीं थी, यहाँ आके देखो मुझे मेहनत करना पड़ रहा है. अगर आप वो एटीट्यूड से आ रहे हो तो देन अब्रॉड इज नॉट फॉर यू. थोड़ा Absolutely. थोड़ा बहुत तो आपका ईगो साइड में रखना होगा और बोलना चाहिए Right. यार ये मेरा टाइम, अभी का टाइम मेरा पढ़ाई का टाइम है, Correct. और मेरा खर्च चलाने के लिए मैं ये सब काम करूंगा. Right. एंड आई डिड एवरीथिंग व्हाट वाज रिक्वायर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई हैड नो शेम. मतलब Right. मैं तो वीकेंड में अगर मुझे कोई बोलता था ना 1 घंटे का काम है आएगा क्या, मैं बोलता हाँ भाई मैं चुपचाप बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, सच आ जाता हूँ. तो कम से कम Hmm. मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो निकलेगा. बट जनरली ये होना चाहिए बिकॉज हम्म. इरिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड,
हम्म। आप शायद किसी करोड़पति के भी बच्चे हो और अगर आप पढ़ने जा रहे हो, बट इफ यू आर हम्म। मेकिंग दोज एफर्ट्स ऑफ वर्किंग, that eventually helping you, in long term. यस, And you what make about your contacts, sir. You make correct? contacts in coffee shop. So for Y- example, I used to serve coffee at a shop, hmm, and I used to serve coffee to a particular gentleman every day. ठीक right. है, his name is Nick. So I Hmm, used to serve coffee to Nick every day. उसका रेगुलर ऑर्डर मुझे पता था, तो बनाते था, मैं रखता था। एक दिन उसने बहुत कैजुअली मुझे पूछ लिया था कि तू क्या पढ़ता है। hmm, तो मैंने बोला मैं ये पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। तो उसने बोला एक काम कर, तेरा सीवी भेजना मेरे को। hmm. एंड माई फर्स्ट इंटरव्यू इन आयरलैंड वॉज बिकॉज ऑफ जस्ट अ कॉफी विच आई वॉज सर्विंग इन। Fantastic. Of course, I didn't take up the job what he offered. That's a different Right. story. Right. But मेरे मुझे एक इंटरव्यू कॉल आया जब पूरे दुनिया में किसी को कॉल भी नहीं जा रहे थे। Correct. तो दोज कनेक्शंस हेल्प यू। तो इसलिए मैं बोलता हूँ लोगों को कि अगर आपके पास टाइम है, पार्ट टाइम जॉब बिल्कुल करो, कॉन्टैक्ट्स Hmm. बनाओ। यू डोंट नो हु यू आर सर्विंग कॉफी और हु यू आर हेल्पिंग। दे माइट बी Correct. अ बिग पर्सन। कोई अपने माथे पे ऐसा चिपका के नहीं आता कि मैं अंबानी हूं करके। यहाँ पे Right. लोगों के पास पैसा होता है, थोड़ा शांत बैठते हैं सब। Correct. Correct. So you're saying that the networking is something which is really important. You या do more and more networking. या Perfect. Now, so after you completed your strategic management, then how did you get a job in your field then? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज वेरी लकी। ठीक है, Hmm. इन द सेंस आई हैड इनफ इनफ एक्सपीरियंस इन सर्चिंग जॉब्स एंड इनफ एक्सपीरियंस इन वर्किंग एमएनसीज। तो मेरा प्रोफाइल पहले से अच्छा था। Correct. तो यूजुअली आपका कोर्स होता है सितंबर से लेके अगस्त तक, मतलब 1 ईयर का जो कोर्स होता है। Correct. तो आप एक जैसे वीजा का रिक्वायरमेंट्स है, आप जॉब जून के बाद बाद ही अप्लाई कर सकते हो। Right. ठीक है, क्योंकि आपका तभी कोर्स खत्म होएगा, तो आपके डेजर्टेशन के पेपर सब सबमिट करने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। So is it मैंने exactly, sorry to cut you, is it या exactly a 12 months course you did, or या will that be extended to say like 2 or 3 months more just because you have to submit your dissertation? ऐसा भी होता है? नो, नहीं नहीं, सिर्फ 12 मंथ से एग्जैक्ट खत्म होना चाहिए। मेरा डिसर्टेशन इंक्लूडेड 12 मंथ्स था। Okay. यूसीडी में मतलब यूसीडी इज द ओनली कॉलेज जहां एक्सटेंशन नहीं मिलता। अगर Okay. आपके पास, सो इफ यू थिंक अबाउट इट, यूसीडी इज रैंक्ड इन टॉप 100 कॉलेजेस इन द वर्ल्ड। Right. ठीक Right. है, तो यहाँ पे पढ़ने में भी प्रेशर बहुत है। अगर किसी Correct. का डेजर्टेशन एक्सटेंड हो रहा है तो यूजुअली छोड़ के जाता है वो, क्योंकि फिर Okay. सरवाइव नहीं होता वो। सर्वाइव नहीं होता, राइट? हाँ। और आपका एक्सटेंशन कैसे हुआ वीजा का? जैसे फॉर एग्जांपल 1 ईयर का मास्टर्स है, तो आपको फिर वो आई थिंक 2 इयर्स और 3 इयर्स यू कैन स्टे इन टू आयरलैंड, इयर्स राइट? इज पोस्ट स्टडी वीजा जो होता है ना आयरलैंड ओके. में। बट एक्चुअली मैंने कभी पोस्ट स्टडी वीजा यूज ही नहीं किया मेरा, ओके. टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे मेरा कोर्स खत्म होने आया था, मुझे उसके पहले ही जॉब मिल गई थी। तो ओके. मैंने एक्चुअली जून से जॉब अप्लाई करना चाहिए था, बट मैंने मार्च से स्टार्ट किया था। मैंने ओके. 1 1.5 महीने ही पहले से स्टार्ट किया था। ओके. मैंने इसे स्टार्ट किया था, कंपनी में अप्लाई कर रहा था, लोगों से बात कर रहा था, मैं लोगों को बोल रहा था यार मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, तो इट इज वेरी स्टूपिड टू गो एट अ लोअर लेवल। सो यू हैव टू पे मी फॉर माई स्किल एंड आई एम रेडी टू वर्क। ठीक है, तो करेक्ट. मैं ये बैकग्राउंड में काम कर रहा था। जैसे ये मार्च अप्रैल आया और मेरा जून सेकेंड वीक में पहला इंटरव्यू आया था। जैसे ही जून खत्म हो, क्योंकि मैंने 2 महीने पहले से मैं काम किया, मैंने बोला मैं जून से तैयार हूं। ठीक है, बट अगर आप जून से चालू करोगे तो आपको अगस्त में मिलेगा। तो मैं तब तक मैं मार्च से चालू किया ताकि मुझे जून में इंटरव्यू मिले। इमीडिएटली यू पास आउट फ्रॉम योर इंस्टीट्यूशन, राइट? हाँ, करेक्ट. करेक्ट। एंड इनफैक्ट आई वॉज सो लकी दैट, मतलब आई वुडंट कॉल इट जस्ट लक बिकॉज इट वॉज माई प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग। मैंने एक्चुअली जून में ज्वाइन किया था, और मैंने लास्ट मॉड्यूल जो था मेरा, लास्ट मॉड्यूल मैंने कॉलेज में एप्लीकेशन लिखा, मैं ये 3 महीने यहाँ काम कर रहा हूँ, या आप ये 3 महीना मेरा इंटर्नशिप काउंट करना, इसको डेजर्टेशन काउंट मत करना, ये भी प्रैक्टिकल ही है। और ओके. यूसीडी वर वेरी काइंड, दे ऑल्सो डिड इट। ओके. So फैंटास्टिक. या. that's how I got. So I applied for many companies, but the two interviews I got was for EY, which is Ernst and Young, ओके. and the second was Accenture in consulting. And I took up EY's offer. I worked in EY for almost 2.5 years. मतलब मेरा फर्स्ट जॉब ही EY था आयरलैंड में। ओके. ओके. तो So दे it's स्पॉन्सर्ड been माय वीजा। it's been what, 3.5 years now you're in Ireland? 4 years now almost? 4.5 years, yeah, yeah. 4.5 years. Okay. 4.5 5 years, Perfect. ऑलमोस्ट अगस्त आएगा तो 5 हो जाएगा। ओके. ओके. एंड व्हाट अबाउट दिस PSW? सो PSW के लिए कॉलेज हेल्प करता है कि स्टूडेंट विल अप्लाई बाय देमसेल्व्स? यूजुअली कॉलेज हेल्प नहीं करता पीएसडब्ल्यू के लिए, क्योंकि कॉलेज का काम खत्म हो जाता है। बट करेक्ट. आपको है ना, कॉलेज सब डॉक्यूमेंट दे देगा जिसके जिसके लिए आपको पीएसडब्ल्यू अप्लाई करने का है। तो ओके. पीएसडब्ल्यू के लिए आपके लिए 4 5 डॉक्यूमेंट चाहिए, कॉलेज आपको पहले से ही दे देगा वो। So do you have क्योंकि to pay for PSW as well? For या example, okay. यू हैव टू पे फॉर पीएसडब्ल्यू। लाइक सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ वीजा इन आयरलैंड फॉर Okay. स्टूडेंट्स। द Okay. फर्स्ट वन इज अ स्टूडेंट वीजा, जो सब पढ़ने आते हैं। Correct. ठीक है, उसके बाद का वीजा होता है पीएसडब्ल्यू, जो आप बोल रहे हो। ठीक Correct. है, पीएसडब्ल्यू 2 साल का होता है। तो Right. जैसे ही आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, कॉलेज आपको एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भेजेगा।
ओके बोलेगा कि आपके पीएसडब्ल्यू के लिए ये सब डॉक्यूमेंट है, राइट स्टूडेंट को वो डॉक्यूमेंट लेना है, आयरिश एम्बेसी में जाके अप्लाई करना है, सब ऑनलाइन प्रोसेस है यहाँ पे। ओके आपको आपको अप्लाई करना है और विद इन 6 to 8 वीक्स आपका वो पीएसडब्ल्यू का कार्ड आ जाता है। ठीक है, ओके वो ओके वो आपको 300 यूरोस पे करना है, मतलब 30,000 रुपीज समवेयर अराउंड दैट। करेक्ट वो 1 साल के लिए वैलिड रहता है। ओके आप ये 1 साल जो ये वैलिड कार्ड जो रहता है ना, 1 साल में आप कोई भी जॉब कर सकते हो, 40 आवर्स आप कर सकते हो। इन अ वीक हाँ, इन अ वीक, राइट विच इज 8 आवर्स अ डे बेसिकली। राइट ठीक है। तो बच्चे ये टाइम पे जॉब ढूंढते हैं। अगर किसी बच्चे को जॉब मिल जाता है और कंपनी को पूछता है कि यार मैं पीएसडब्ल्यू में हूं जिसका वैलिडिटी सिर्फ 1 साल है, क्या आप मेरा वीजा स्पॉन्सर करोगे? तो कंपनी उसका वीजा स्पॉन्सर करती है, विच ओके इज यूजुअली फॉर अ 2 year कॉन्ट्रैक्ट। दैट ते इज परमानेंट। that हाँ। is after, say for example, हम्म। somebody is studying after passing out 1 year of masters, उसके पास में हम्म। 2 साल का पीएसडब्ल्यू है। हम्म। अब बच्चा 2 साल में हम्म। समझो 6 महीने बाद में उसको एक ही गॉट अ गुड जॉब इन हम्म। इन एमएनसी फॉर एग्जांपल। हम्म। सो अब वहां पे वो बंदा काम कर रहा है, ही कैन वर्क फॉर 1.5 year ऑन हिज वीजा, ओन वीजा। आफ्टर करेक्ट। 1.5 year when he has to extend, so the first visa which हम्म। he gets it, it's for 2 years, right, you're saying? करेक्ट। करेक्ट। Perfect, करेक्ट। perfect, perfect. बट देर इज ऑल्सो स्मॉल कैच टू इट। हम्म जैसे कि अगर कोई बच्चा है वो पीएसडब्ल्यू में कंपनी ज्वाइन करता है, 6 महीना प्रोबेशन खत्म हो गया, हम्म तो इमीडिएटली कंपनी के पास जाता है, बोलता है देखो मेरा प्रोबेशन खत्म हो गया, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा, अब मेरा वीजा स्पॉन्सर करो। मैं एक और साल पीएसडब्ल्यू क्यों यूज करूं? ओके आप मुझे जल्दी स्पॉन्सर करो ताकि मेरा पासपोर्ट या मेरा पीआर का जो सिस्टम है राइट जल्दी आए। राइट इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में बोला था, मैंने कभी पीएसडब्ल्यू अप्लाई नहीं किया। जब मैं ज्वाइन कर रहा था मैंने नेगोशिएटिव वैसे ही किया था, ये बोलने के लिए कि पीएसडब्ल्यू वाला चक्कर में मैं नहीं पड़ रहा। मेरे करेक्ट पास स्किल है, आपको मेरा स्किल चाहिए, तो मेरा ये रिक्वायरमेंट है। Fantastic. That you negotiated with them at the early stage. That is important. इट Kind डिपेंड्स of, ऑन योर स्किल, इट डिपेंड्स ऑन kind योर of. स्किल एंड व्हाट यू ब्रिंग ऑन टू द टेबल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं हवा में तो नहीं बोल सकता किसी कंपनी को Correct. भाई मुझे दे दे करके, बट हाँ, इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑन योर स्किल। एंड लाइक आई सेड, आई लाइक मैं 8-9 साल का एक्सपीरियंस लेके जब आ रहा था, मुझे पता था कि नेगोशिएट क्या और कैसे करना है। Correct. सो सम आई थिंक वन एडवाइस विच आई गिव टू अ लॉट ऑफ यंग स्टूडेंट्स हु आर कमिंग इज, डोंट लुक फॉर मनी इन अ जॉब, Hmm. लुक फॉर स्टेइंग इन द कंट्री फॉर लॉन्ग। कभी Correct. कभी बड़ा जॉब लेते वक्त आपको वीजा नहीं देंगे, Hmm. उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको 2 साल बाद चले ही जाना है। Correct. ठीक है। Hmm. उससे अच्छा आप एक एवरेज पे का जॉब लो बट वीजा ले लो, ताकि आप Hmm. फिर लॉन्ग टर्म ये कंट्री में रह सकते हो। And you can find multiple options later, once you have that एग्जैक्टली। visa. Correct. यस। Correct. I forgot to ask you a question. When you were studying in UCD, by chance, were you being, exposed to the companies over there? जैसे इंडिया में होता है, फॉर एग्जांपल VJTI इंजीनियरिंग कॉलेज में काफी कंपनीज अप्रोच करती है। कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप देखोगे तो कंपनीज आती है, वहां पे कंपनीज विल गिव यू द ऑफर्स, बिफोर यू कंप्लीट योर करेक्ट। मास्टर, द बैचलर, द व्हाटएवर। सो सिंपली वहां पे भी यूसीडी में भी ऐसी पैटर्न इस तरह से होता है, मतलब कंपनीज आती है आपके पास? हाँ, यूसीडी में भी होता है, उसको बोलते हैं यूसीडी करियर फेयर करके बोलते हैं। तो मल्टीपल कंपनीज आती हैं, वो अपना जॉब पोस्टिंग्स दिखाती हैं, ये सब जॉब है हमारे पास, आप वेबसाइट में जाके अप्लाई करना। ओके। आपको यहाँ पे कैंपस इंटरव्यू नहीं होगा। हम्म बट यहाँ पे एक अंडरस्टूड बात है कि यहाँ के टॉप जॉब्स यूजुअली 2 कॉलेज के बच्चे ही लेते हैं, एक है ट्रिनिटी, दूसरा यूसीडी। ये ओके 2 बच्चों में जॉब बटा हुआ है मार्केट में, मतलब हाई पेइंग जॉब्स और एमएनसी के जॉब्स है ना, ज्यादातर ये 2 कॉलेज ही लेते हैं। ओके। ठीक है, ये अंडरस्टूड बात है। हम्म अगर ये 2 कॉलेज के बच्चे नहीं लेते हैं तो मार्केट में ये जॉब चला जाता है। हम्म ठीक है, तो क्या करते हैं वो, यूसीडी करियर फेयर जब होता है तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनी आती हैं। करेक्ट ठीक है। और वो एक बिल बोर्ड होता है, एक नोटिस बोर्ड होता है, वहां पे अपना लिस्ट ऑफ जॉब्स लिख के रखते हैं। तो करेक्ट। कोई भी जाके जॉब देख सकता है, क्या इंटरेस्ट है, और हम्म फिर एक स्कैनर होता है, उसी में स्कैन करके वो इमीडिएट अप्लाई कर सकता है। ओके ओके, सो ठीक दैट है। दैट फैसिलिटीज आर हाँ, देयर। सो द रीजन व्हाई दे डोंट कंडक्ट कैंपस इंटरव्यूज, यूसीडी हैज क्लोज टू 19,000 स्टूडेंट्स स्टडिंग एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। ओके। तो इनको सबको मैं भी कहाँ फिल्टर करते बैठूं? ठीक राइट है। तो राइट। इसलिए बोलते हैं आप ऑनलाइन आपके कन्वीनियंस पे अप्लाई करो, हम फिल्टर करेंगे, जो सिलेक्ट होगा हम उसको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। करेक्ट वेरी करेक्ट। सिंपल एज दैट प्रोसेस। Okay. Now, another thing which I wanted to ask you is, say, for example, a student who moved to Ireland at the initial stage, say for 6 months, 8 months, he's pursuing the education. He doesn't have a part-time job, for example. Like, a lot of people I've heard recently in UK, Ireland, people have been struggling with the part-time jobs. So, do you suggest people that, because generally what happens is I always recommend people that, you're going for an education first. Forget about the job, forget about the, what's going to happen to you later. Your
your concentration has to be on the studies. That's Correct. the main thing. And then if you do not get the part-time job, don't Hmm. give it up. Hmm. What they can do if they don't have a part-time job? Say for example, somebody has a very tight budget. तो क्या कर Hmm. सकते हैं आपके हिसाब से? सर बहुत अच्छा सवाल है ये। अ, मेरे हिसाब से मतलब अभी राइट नाउ लाइक माय वाइफ इज अ फाइनेंस पर्सन, शी इज अ बैंकर, शी ऑलवेज टेल्स मी पगार से खर्चा बढ़ता है सिर्फ। करेक्ट, ठीक है, तुझे अगर बचाना है तो तुझे खुद से बचाना है। ठीक करेक्ट, है, तू 100 रुपया तेरे तू कमाता रहेगा, तू 150 रुपया भी उड़ा सकता है, वो तेरे हाथ में, खर्च तुझे बचाना है। करेक्ट, बहुत करेक्ट। सिंपल लॉजिक है। हम्म, आई हम्म, अंडरस्टैंड कि कभी कभी बच्चों को पार्ट टाइम जॉब नहीं रहता, हम्म, बहुत कॉमन हो रहा है आजकल यहाँ पे आयरलैंड में। करेक्ट, ऐसा करेक्ट। नहीं कि मार्केट खराब है, हम्म, इट्स जस्ट दैट कि ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं अभी, हम्म, तो कॉफी शॉप्स का रिक्वायरमेंट नहीं है और वो नहीं, गिरते जा रहा है। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, इसलिए तो एक सेक्शन ऑफ बिजनेस थोड़ा सा बंद हो गया, बट अदर सेक्शन ऑफ बिजनेस खुल रहे हैं। राइट। तो इसमें अगर बच्चों के पास किसी के पास पार्ट टाइम जॉब नहीं है ना, तो बहुत सारे ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब्स मिलते हैं, हम्म, आप वो कर सकते हो। जैसे मैंने बीच में 3 महीने एक कॉल सेंटर में काम किया था, जब अच्छा। मेरा ईवाई के पहले का 3 महीना ब्रेक था, छुट्टी हम्म, था मेरे को 3 महीना। हम्म, मैंने बोला ये कॉफी शॉप बस हो गया यार मेरे को, मतलब मैं क्या 8 घंटा काम कर, कुछ और करना पड़ेगा। राइट। ठीक है, कुछ और, मैं भी एक्चुअली बोर हो गया था ये कॉफी शॉप से, मैं सोच रहा था कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा जहाँ पे पैसा भी आए, मैं मेरा दिमाग भी चलाऊं। तो हम्म, मैंने एक आयरिश यहाँ पे कंपनी है, जैसे इंडिया में कैसे कॉन्वर्जेस सर्को होता है, करेक्ट, करेक्ट। वैसे यहाँ पे भी एक कंपनी थी, मैंने वहां पे जाके पार्ट टाइम के लिए अप्लाई किया था। हम्म, मतलब रास्ता आपको खुद ढूंढना पड़ता है, ये तो मैंने एक सजेशन दिया था। हम्म, और उस टाइम पे, मेरे टाइम पे ओमिक्रॉन भी आ गया था बीच में सडनली। ओके। तो सब बंद हो गया था, कॉफी शॉप बंद हो गए थे, सुपरमार्केट बंद हो गया था। तो अब मैं क्या करूँ, तो पैसा तो चाहिए ही ना, तो मैंने ये पार्ट हम्म, टाइम जॉब कर लिया था। तो मैं स्टूडेंट्स को यही बोलूंगा कि अगर आप अब्रॉड आ रहे हो तो माइंडसेट ये रखना कि गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन। करेक्ट। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट। एंड सेकेंड, डू नॉट हैव अ बैकअप प्लान, हम्म, ऑलवेज गो विथ ओनली वन प्लान। द करेक्ट। मोमेंट यू हैव अ बैकअप प्लान ना, फिर आप हमेशा बैकअप प्लान के बारे में सोचते रहोगे। हम्म, जैसे मुझे बीच बीच में मेरे घर से फोन आता था, क्यों इतना वहां स्ट्रगल कर रहा है, वापस आ जा, ले ले, पीआर तो ऑलरेडी पड़ा है, चला जा वहां पे। कनाडा तो पीआर, यस। हाँ, वो भी कनाडा पीआर पड़ा हम्म, ही है, चला जाना, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है पैसा हम्म, ही गया है। तो मैं हम्म, उनको हमेशा ये बोल रहा था, अगर मैंने अभी गिव अप किया ना, तो मुझे हम्म, लाइफ में एक ऑप्शन मिल जाएगा गिव अप करने का। और एक बार मैंने गिव अप करना सीख लिया, मैं सिर्फ गिव अप करते रहूंगा, मुझे वो नहीं करेक्ट, चाहिए। करेक्ट। थोड़ा मैं स्ट्रगल करूंगा, आज का स्ट्रगल है, हम्म, कल का शायद मेरा अच्छा दिन होगा, बट आज का एब्सोल्युटली। स्ट्रगल और मैं कल आज का स्ट्रगल देखने को मुझे कोई तकलीफ नहीं है, देख लूंगा मैं। और मैं हमेशा ही बोल रहा था, उम्र मेरा कम है, मैं 28-29 साल का था तब। ठीक हम्म, है, कि मतलब देख लूंगा ना, मतलब जिंदगी पड़ी है मेरी, कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो वो देख लूंगा मैं, बट करेक्ट। गिव अप नहीं करूंगा मैं। सो आई थिंक इंपॉर्टेंट एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स इज नॉट गिविंग अप, एंड अबाउट टाइट बजट्स, you can always find online part-time jobs, always you can find it. Fantastic. Uh, I wanted to ask you, in Hmm. terms of safety and security, Hmm. you know, सॉरी, अभी जनरली क्या होता है कि पेरेंट्स को काफी टेंशन रहता है कि मेरा बच्चा वहाँ कैसे रह रहा है, Hmm. और दूसरा देश है, वहाँ का नियम है, वहाँ का कानून है, रूल्स Hmm. रेगुलेशन एंड एवरीथिंग। सो Hmm. व्हाट अबाउट आयरलैंड, लाइक कितना सेफ है बच्चों के लिए, स्पेशली फॉर गर्ल्स, हाउ Hmm. सेफ इट इज? और इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम भी होता है, लाइक व्हाट आर द थिंग्स व्हिच दे कैन डू टू टू सिक्योर देमसेल्व्स? सर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे हिसाब से तो ये देश काफी सेफ है, हम्म, सिक्योर है। हम्म, ठीक है, मतलब आप रात के 2-2:30 बजे भी निकलो, रास्ते में आपको कोई दिखेगा नहीं, वो अलग बात है। हम्म, बट वीकेंड में तो आपको 2-2:30 बजे रात को तो कोई दिखने ही नहीं वाला, सब सोए रहेंगे। आयरलैंड ओके, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला कंट्री है। ओके। ठीक है, यहाँ पे ज्यादातर ऑफिस टाइम 7:30-8 बजे का होता है, हम्म, और दिन खत्म होता है 3:30-4 बजे। और ओके, विंटर बहुत हार्श है यहाँ। ठीक है, तो आपको ऐसे कोई बाहर दिखेगा नहीं ज्यादा। ठीक है, राइट, राइट, मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम सुनसान जगह है, मतलब वो शहनशाह टाइप म्यूजिक नहीं चलता यहाँ बैकग्राउंड में। करेक्ट, करेक्ट। बट मतलब पब्लिक अपना अपना काम करती है यहाँ। हम्म, ठीक है, किसी को किसी में लेना देना नहीं है। बहुत फ्रेंडली है, अगर आपने सामने से किसी से बात किया ना, हम्म, वो आपको खाना खिला के ही भेजेगा यहाँ पे। अच्छा, ओके, हाँ, मतलब बहुत फ्रेंडली है वो यहाँ के लोग। ठीक है, ओके। इन टर्म्स ऑफ फॉर सिक्योरिटी फॉर वुमेन, सेफ्टी फॉर वुमेन, आई हैव अ 3 year old डॉटर नाउ। हम्म, ठीक है, मेरी बेटी आराम से आके खेल कूद के आ जाती है हम्म, बाहर। हम्म, ठीक है, ऐसा मतलब मुझे याद है, मैं इंडिया में बचपन में था, मेरी मम्मी नीचे, मैं बिल्डिंग में जाता था खेलने, मेरी मम्मी बोलती संभाल के जाओ, कोई उठा के लेके जाएगा लेके तुझे। जाएगा, करेक्ट, हाँ, राइट, हाँ तो यहाँ पे पब्लिक ही कम है ना सर, जब लोग राइट। कम है तो आपका सिक्योरिटी थोड़ा ज्यादा हो करेक्ट। जाता है, और ज्यादातर लोग इंडियंस या एशियंस ही हैं, हम्म, तो आपका वो एक सिक्योरिटी फैक्टर है। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम
क्राइम लेस कंट्री है, ये तो नहीं है ये। ठीक है, हम्म। बट अगर आप क्राइम्स का रेट भी देखोगे, वो सिटी में ज्यादा होता है। व्हेन आई से करेक्ट। सिटी, डबलिन सिटी में एक एरिया है, हम्म। वहां बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां बहुत सारे पब और वो अल्कोहलिक प्लेसेस है। करेक्ट। आप फिर फ्राइडे रात को 2-2:30 बजे दारू पीने जाओगे वो जगह पे, फिर आप क्या ही करने वाले हो? करेक्ट। अगर बहुत पी लिया, उनका थोड़ी सेंस रहने वाला है। तो राइट आप राइट अगर राइट। ऐसे एरिया अवॉइड करोगे, तो इसमें सिक्योरिटी या सेफ्टी का प्रॉब्लम नहीं है। डबलिन में ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, तो आपको रात को 1:30-2 बजे तक बस मिलेगा। लास्ट बस 2 बजे का होता है, और ओके। पहला बस सुबह 5 बजे का होता है। ओके। ठीक है, तो उस बीच में 3 घंटे में मतलब टैक्सी इज दी ओनली ऑप्शन। राइट। लास्ट ट्रेन आपका 12 बजे का होता है, ओके। और पहला ट्रेन सुबह 4:30 का होता है। फैंटास्टिक। ठीक है, और फिर लोकल ट्रैम चलते रहता है, मतलब वो भी आई थिंक 1:30 को लोकल ट्रैम बंद होता है, बट वीकेंड में 3 बजे तक रहता है, क्योंकि यहाँ के लोग वीकेंड टू वीकेंड जीते ना। Right, 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 right. So, what about other provinces apart from Dublin? Say, I think there is one which is the University of Cork, which is also good या university, या but that's little inside, as in kind of in a regional place, something like that. इट्स नॉट रीजनल मतलब इट्स मतलब आई विल बी वेरी रॉन्ग इफ आई से इट्स रीजनल। इट्स Hmm. लाइक, सो डबलिन इज द मुंबई ऑफ आयरलैंड। Correct. Okay. ठीक है, एवरीथिंग बिग यू सी हियर इज इन डबलिन। Okay. ऑल द बिग एमएनसीज, Hmm. all the startups, all sort of big, matlab, whatever think whatever you can think of Mumbai, everything is in Dublin. Okay. Cork is like Bangalore. Hmm. Okay, Cork has got a lot of medical infrastructure. There is a Okay. company called as Medtronics. They are the biggest in Cork. ठीक Right. है, इन Right. टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल हार्डवेयर प्रोड्यूसिंग कंपनीज आर देयर इन कॉर्क, जैसे इंटेल हो गया। Hmm. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का एक रिसर्च डिवीजन है जो कॉर्क में है। और Okay. कॉर्क डबलिन से 2.5-3 घंटे दूर है। Hmm. ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मतलब बहुत गांव है, मतलब Acha. सॉरी फॉर लैक ऑफ। Semi urban, I mean semi city हाँ, kind of. Yeah. मतलब Correct. कॉर्क कोई बदलापुर करजत जैसा एकदम इतना पुराना जगह है जहां पे बॉम्बे आने के लिए 1-1.5 घंटा, वैसा नहीं है कुछ कॉर्क। Okay. कॉर्क Okay. इज एज डेवलप्ड एज डबलिन। ठीक है, इफ नॉट स्लाइटली लेस डेवलप्ड देन डबलिन, बट द फैक्ट इज कॉर्क इज ऑल्सो वेरी डेवलप्ड, डेवलप्ड Province. पार्ट ऑफ द कंट्री, या डेवलप्ड पार्ट ऑफ Hmm. द प्रोविंस। एंड if you think about it, a lot of people study in University of Cork, or what you call as UCC, and then they move to Dublin for work also. Okay. And comparatively, na, Dublin mein cost of living is at least 4 times higher than Cork. Okay. Okay. So, my next question to you is especially from the student's point of view, because मैं देखता हूँ कि जैसे Hmm. वहाँ पे काफी different types of universities, like, and every year I find some private universities also, they are Hmm. launching, like Limerick है, for example, Galloway है. Hmm. So do you suggest student to go to these regions and study, or would you prefer to be in Dublin, study there, work there, and stay there like that? So that's a very good question. Hmm. ठीक है, so now the universities which you mentioned, which is Galway, Limerick, Cork. कॉर्क, ठीक है, ये हाँ. तीन जो यूनिवर्सिटी है, Hmm. ये तीनों यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी अच्छी है। Correct. ठीक है, Correct. जगह भी ठीक है। Hmm. Hmm. ठीक है, ऐसा नहीं है कि खराब जगह है, Hmm. देर डिसेंट इनफ प्लेसेस टू लिव, देर Correct. डिसेंट इनफ प्लेसेस टू And much more फाइंड वर्क। affordable as compared to हाँ, Dublin. Yeah. यस, डबलिन में फायदा एक ही है कि बड़े कंपनीज है, कॉलेजेस थोड़े इनसे बेटर है, जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन और ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन ऑलमोस्ट 650-700 साल पुराना कॉलेज है। Right. ठीक है, ट्रिनिटी कॉलेज इज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, यूनिवर्सिटी कॉलेज इज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन का अगर आप लाइब्रेरी देखोगे, Hmm. मतलब फॉर मतलब जो भी अगर बॉम्बे से हैं, कोई अगर पवई से रहेगा, वो हीरा पन्ना मॉल छोटा है। Hmm. यूनिवर्स उसका अगर हीरा पन्ना मॉल देखोगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन का वो एक फिक्शन सेक्शन है। I think bigger than Powai Plaza. हाँ, बिगर मतलब इजीली बिगर देन पवाई प्लाजा, Correct. मतलब Correct. इजीली बिगर। Right. ठीक है, Right. Right. यूसीडी का कैंपस ही ऑलमोस्ट अराउंड 166 एकर्स में। Okay. ठीक है, तो आपको वो एक्सेस टू फैसिलिटीज है यूसीडी में, जो बाकी जगह थोड़ा कम है। मतलब है, Right. फैसिलिटीज तो सब एक जैसे ही हैं, Right. बट Right. Right. वॉल्यूम का जो आप सोच रहे हो वो कम है। आपके बजट के ऊपर है। Hmm. ठीक है, Hmm. मुझे कभी कभी लगता है मैं कोई छोटे कॉलेज में जाके पढ़ना चाहिए था, ताकि Hmm. मेरा ट्यूशन फीस बचे, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था। Correct. मैं अगर छोटी कॉलेज में भी पढ़ता था तो शायद मुझे यही नौकरी मिलती थी जो मैं ढूंढ रहा था। Right. ठीक है, बट वो Right. कॉन्शियस कॉल होता है। अगर मैं पर्सनल ओपिनियन दूं, तो मैं बोलूंगा कि आपका बजट देखो। ठीक Hmm. है, बजट में कौन सा कॉलेज फिट हो रहा है वो देखो। कॉलेज इंपॉर्टेंट है, यस आई अग्री। Hmm. मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि
यूसीडी से अच्छा कॉलेज में मिला तो नहीं जाना चाहिए, ऑब्वियसली जाना चाहिए। करेक्ट। बट आप ये भी देखो कि इतना भी लोन ना लो फिर कि भरने में तकलीफ हो जाए। तकलीफ हो जाए, करेक्ट। करेक्ट। यू नो व्हाट, मेरा उस पे ये रहेगा कि कहना ये रहेगा कि जनरली क्या हो रहा है कि जैसे मैं वीजास करता हूँ, हम्म। रेगुलरली करता हूँ, आयरलैंड वीजा करता हूँ, यूके वीजा करता हूँ, अभी आज की डेट में क्या है कि काफी बच्चे जा रहे हैं, हम्म। एंड लाइक एवरीवन वांट्स टू बी देयर एंड वांटेड टू एक्सपोज टू दिस काइंड ऑफ एजुकेशन, एंड एज यू नो दैट कि वहाँ पे सैलरी वगैरह अच्छा मिलती है एंड यू गेट एन हम्म। इंटरनेशनल एक्सपोजर, तो जाना तो सबको है। हम्म। प्रॉब्लम किधर होता है? वीजा में। हम्म। वीजा में एक चीज नोट करनी चाहिए, मतलब जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को 89-90% है, इज अ बेटर स्कोर्ड student, then हम्म। obviously the question arises why he would like to pursue in something called as in Dublin Business School, you know, हम्म। मतलब वो एक प्राइवेट स्कूल में जाके बच्चा पढ़ना क्यों चाहता है? हम्म। देन द अनदर क्वेश्चन कम्स इन द माइंड ऑफ वीजा ऑफिसर की बंदे के पास पैसा नहीं है, ही बीइंग अ ब्रिलियंट स्टूडेंट on a very nominal budget, he wants to come to Dublin Business School and wanted to settle down there. Because look, visa officer would not, one of the criteria is there that, you know, if they will get an impression that you wanted to work, you wanted to settle down in Ireland, straight away rejection. Correct? So एक वो point of view तो है। Anyways, 100%। या मैं ये पूछना चाहता हूँ हम्म। नेक्स्ट कि ये पीआर वाला मामला क्या है? मतलब पीआर आपने कब अप्लाई किया और कितनी आसानी से मिल गया आपको? जैसे मैंने आपको बोला था वीजा का, तो अगर आपको एक कंपनी में काम करते हो तो 2 साल का वीजा मिलता है, तो 2 साल इज 24 मंथ्स। करेक्ट। तो उसमें रूल ये है कि 21 मंथ्स यू कैन नॉट चेंज योर जॉब, यू हैव टू कंटिन्यू विद द सेम कंपनी। सेम कंपनी, ओके। हाँ। तो वंस यू कंप्लीट 21 मंथ्स तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ओके। ठीक है, आपको पीआर के लिए अप्लाई करना होता है। पीआर अप्लाई करना या मतलब फेयरली सिंपल प्रोसेस है। एक आपको कंपनी से लेटर चाहिए होता है कि मतलब कभी इसने छोड़ा नहीं। ठीक है, आपको 21 मंथ्स का सैलरी स्लिप चाहिए होता है और एक इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, इतना ही। करेक्ट। करेक्ट। ठीक है, बाकी बाकी आपका पासपोर्ट तो उनके पास होता ही है, और आपका जन्म कुंडली वो गवर्नमेंट से वो खुद निकाल लेते हैं आपका। ओके। ओके। ठीक है, तो वो निकाल लेंगे, आपको अप्लाई करना है। मैंने अप्लाई किया था, एक मेरा मेरा पीआर आके ऑलमोस्ट अभी 1.5 साल हो गया है। तो मैंने जब पीआर अप्लाई किया था, मैंने एक जून में अप्लाई किया था, मेरा पीआर अगस्त में आ गया था। और फिर मैंने कार्ड अगस्त में अप्लाई किया था, वो आई थिंक अगस्त एंड में आ गया था। मतलब कुल मिला के 2 महीने का प्रोसेस था ठीक उस है। टाइम पे। कितना अभी तो खर्चा बढ़ है गया है आपका? प्रोसेस मेरा पीआर का। मैं कंपनी पेड था। ओके, फैंटास्टिक। और पीआर, एक बात बताओ कि पीआर में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है? जैसे कनाडा में ऑब्वियसली हम्म। काफी था, मतलब मेडिक्लेम, स्टूडेंट, योर चिल्ड्रंस एजुकेशन, एवरीथिंग इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट। सो हम्म। आयरलैंड में कैसे पीआर का, जरा बताइए। सेम है, एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ फर्क ये है कि मतलब यहाँ पे मुझे वोटिंग राइट्स भी हैं, बट ओके। मेरा वोट्स माइनॉरिटी में काउंट होएगा, मेजर में काउंट नहीं होएगा। ओके। ठीक है। तो मतलब वोटिंग राइट्स भी हैं, चिल्ड्रंस एजुकेशन फ्री है, आपके मेडिकल फैसिलिटीज फ्री हैं। ओके। अगर आप कभी कोई घर खरीद रहे हो, आपने जितना साल टैक्स भरा उसका आपको एटलीस्ट आई थिंक 50% टैक्स, अगर जो भी एक्सेस टैक्स भरा है आपने, वो टैक्स आप क्लेम कर सकते हो, घर खरीद सकते हो यहाँ पे। ओके। ठीक है। लोन में काफी फायदा हो जाता है, कोई भी आप मॉर्गेज लेते हो यहाँ पे, आप पीआर होल्डर है तो लोन में थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है। इट ऑलवेज मेक्स अ डिफरेंस रादर देन एक डिपेंडेंट को आप लोन देने से अच्छा वीजा इंडिपेंडेंट को आप लोन दोगे तो बेटर रहता है। करेक्ट। ठीक है। आई थिंक सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप एक स्टेप क्लोजर हो पासपोर्ट के लिए। ओके, देन यू टॉकिंग ठीक है। अबाउट द सिटीजनशिप। यस, आयरिश पासपोर्ट और आयरिश सिटीजनशिप। द रीजन इज आयरिश पासपोर्ट इज द फिफ्थ स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन होल वर्ल्ड। ओके। ठीक है, वंस यू हैव एन आयरिश पासपोर्ट यू हैव एक्सेस टू क्लोज टू 196 197 कंट्रीज फॉर अच्छा। वर्क। राइट, राइट, दैट्स गुड। हाँ, ठीक है। दैट्स सो फॉर एग्जाम्पल इंसाइटफुल। इफ यू आर, हाँ, इफ यू आर अ आयरिश पर्सन, ठीक है, यू कैन गो टू यूएस एंड वर्क विदाउट अ वीजा फॉर अ ईयर। ओके। 1 साल के बाद वो लोग ऑटोमेटिकली आपको अप्लाई करेंगे, एंड अनलाइक अदर कंट्रीज उतना वीजा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता। मतलब अगर आपके पास आयरिश पासपोर्ट है, यू कैन फ्लाई टू ऑस्ट्रेलिया एंड फाइंड वर्क एंड वर्क देयर। ओके। एनीवेज आपका पूरा यूरोप खुल जाएगा अगर आयरिश पासपोर्ट है यू तो डोंट आपको रिक्वायर यूरोप। वीजा एनी विच वेज, राइट? एग्जैक्टली, वीजा यू बैरिंग डोंट। यूके। हाँ, मतलब यूके में तो आप लेजर के लिए जा सकते हो, वर्क के लिए नहीं, क्योंकि हम्म। ब्रेक्सिट के बाद वो लोग आपके लिए वर्क अप्लाई करेंगे, वो सब है उनका। हम्म। अगर आप ज्यादातर आयरिश लोगों को देखोगे तो ज्यादातर आयरिश लोग मिडिल ईस्ट जाते हैं। ओके। दुबई, सऊदी अरेबिया, कुवैत। इज इट फॉर व्हाट टूरिज्म यू टॉकिंग अबाउट? नो नो, वर्क। वर्क के लिए? व्हाई लाइक हाँ, दिस? टैक्स फ्री। ओह, द बर्डन ऑफ टैक्सेस। राइट, आयरलैंड में राइट। टैक्सेस काफी हाई हैं इफ यू आर एम्प्लॉयड पर्सन। ओके, सो व्हाट आर द टैक्सेस यू आर पेइंग? 40% ऑफ माई सैलरी। 40%? या। ओह,
बट इसका अगर आप सोचोगे ना 40% ऑफ द सैलरी, यार मैं कितना ज्यादा दे रहा हूँ, इसका फायदा बहुत है। हम्म ठीक है। हम्म ये 40% सैलरी आप 5 साल के बाद ऑलमोस्ट, मतलब मैंने 40% एवरेज अगर मैंने पांच हम्म साल दे दिया है, हम्म ठीक है, मैं 5 साल के बाद लेट्स से मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ। हम्म ठीक है। मैंने जितना टैक्सेस भरा है ना, मैं इसका 80% क्लेम बैक कर सकता हूँ। गवर्नमेंट मेरे बिल्डर को दे देगी, बोलेगी इसने इतना एक्स्ट्रा टैक्स भरा, ये सब पैसा उसके घर के लिए जाना चाहिए। तो करेक्ट आपका करेक्ट। मॉर्गेज अमाउंट कम हो जाएगा। कम हो जाता है, हाँ राइट। ठीक है। फिर आपके चाइल्ड एजुकेशन के लिए स्कूल यूनिफॉर्म, बुक्स, ये टैक्स में से पैसा कटेगा, आपके जेब से कुछ नहीं जाएगा फिर, क्योंकि आपने हम्म। ऑलरेडी भर के रखा है भर इतना। के रखा हुआ है, करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट। उसमें से कट हो जाएगा। ये जो 40% ये लोग अपफ्रंट कैलकुलेट अपफ्रंट ले रहे हैं आपसे, हम्म ये उम्मीद से ले रहे हैं कि बच्चा होगा, स्कूल जाएगा, स्पोर्ट्स खेलेगा या खेलेगी, जो करेक्ट। भी है, हम्म उसको पैसा नहीं देना पड़े। ये हम्म 40% में से कटते जाएगा वो। हम्म। तो अभी मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने शादी की है, बट चिल्ड्रन नहीं चाहिए उनको, या नहीं है, जो भी है। हम्म ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, ये पैसा और सेव करने देते हैं। वो सोचेंगे अभी हम 3 बेडरूम ले सकते हैं, नहीं, 2 साल और जाने दे, हम 5 बेडरूम लेंगे। हम्म। तो वो ज्यादा पैसा मतलब टैक्स में भरते हैं और वो पैसा वैसा क्लेम करेंगे। या करेक्ट। फिर कुछ लोग अपने पेरेंट्स को लेके आएंगे यहाँ, और फिर मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो अवेल करेंगे उनके लिए। ओके, दैट इज अलाउड। हाँ, मतलब यू हैव पेड दैट मच टैक्स ना, तो पैसा तो आप दे ही रहे हो वैसे भी, तो राइट टैक्स में से दे दो। right, right. No, but the parents doesn't have the Irish passport, right? नो, Still दे they डोंट can, नीड टू। हाँ they don't need बिकॉज, to. हाँ बिकॉज इंश्योरेंस में नाम होगा, या Okay. फिर आपने वीजा अप्लाई किया रहेगा उनका आने के लिए। Hmm. तो दे कैन अवेल द फैसिलिटीज ऑफ द नेशनल, नॉट, मतलब नेशनल, मेरा फैसिलिटीज, अगर मैं आयरिश नेशनल हूं, मैं मेरा फैसिलिटी दे सकता हूँ। Correct, correct, correct. Okay, okay. Fabulous. So, tell me about the top-notch MNCs which are based out in Ireland, and of course, I've heard like most of the headquarters are there in Ireland, या right? So, which are या those companies? गूगल, Okay, द यूरोपियन हेडक्वार्टर्स फॉर गूगल इज इन आयरलैंड। okay, एप्पल, टेस्ला, okay, okay. amazon, Mm-hmm. Facebook has right now in 50-50, in the sense of Ireland is 50% of headquarters, 50% is US. US. ठीक Okay. है। Yeah, that is the technical companies which I'm talking about. If you're talking about medical fields, right? Mm-hmm. Medtronics, Abbott, उनका सबका headquarters, it's an American company, Abbott. Right, So right. their headquarters is in Ireland right Ireland. now. Okay. ठीक है। If you're looking at consulting companies, then you have Mm, companies like Deloitte, PwC, ठीक है, mm, EY, these are the companies which are here. Then you have multiple companies like Shell, okay. British Petroleum, if you're Mm, looking in oil and gas industry. mm. उसके अलावा भी, if you have a PR, you're eligible to apply for a government job here, तो आप Right, government job apply कर सकते हो। right, right. Now, which are the popular courses when you were studying in UCD? हम्म Which were the popular courses which were in high demand? As in, obviously, you have done strategic management. I'm हम्म saying in terms of because a lot of IT people, the हम्म मेरे पास में से काफी बच्चे हैं जो एक्सेंचर में काम कर रहे हैं, डिलॉइट में काम कर रहे हैं, और हम्म उनका बॉस बोल रहा है कि बॉस, नो नो नो, यू कांट गेट इट फॉर आयरलैंड, एक काम कर, जॉब छोड़, पढ़ने जा, हम्म 1 year, do 1 year masters, and then the counter fellow there, he will absorb you immediately, you pass out from the हम्म institution. तो काफी हम्म ऐसे गए हैं that like हम्म you call, we probably can say as an external transfer kind of like. ओके। तो मतलब वो ये जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे पढ़ना, हम्म और सडनली लाइक कोई बंदा आईटी फील्ड वाला है तो उसके लिए कितना आसान हो जाता है, और जो नॉन आईटी वाला है उसके लिए कितना कितना डिफिकल्ट होता है जॉब के लिए? सर, आईटी फील्ड वाले बंदे को तो हमेशा आसानी ही होगी कंपेयर हम्म टू नॉन आईटी फील्ड। हम्म ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि नॉन, अभी मैं मतलब कंप्लीटली नॉन आईटी भी नहीं था, मैं आईटी भी नहीं था, मैं तो मतलब एकदम बीच में था मेरा हम्म वाला तो। हम्म। ठीक है। तो आईटी फील्ड वालों के लिए हमेशा से थोड़ा आसान होता है, क्योंकि आईटी इज आयरलैंड्स ब्रेड एंड बटर। राइट। ठीक है। आयरलैंड इज कॉल्ड एज द टेक्निकल हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑल द कंपनीज राइट नाउ फॉर अ रीजन, क्योंकि यहाँ पे सब टेकीज ही हैं। करेक्ट मतलब अगर आप ध्यान से सोचोगे, आयरलैंड उन कंट्री में से एक है जिनको बनना है यूएस की तरह, बट पॉलिसीज यूके की हैं। करेक्ट करेक्ट, यस। ठीक ठीक है। तो आपके मेजोरिटी अमेरिकन कंपनीज यहीं पे आएंगे और आते हम्म रहेंगे। हम्म ठीक है। तो टेकीज के लिए तो लाइफ थोड़ा आसान है। इन टर्म्स ऑफ नॉन टेकीज, राइट, नॉन टेकीज के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वास्ट है यहाँ। अगर हम्म। आप टेक बढ़ा रहे हो तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आएंगी ही आएंगी फिर। ओके। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज जो पॉपुलर है आईटी वालों के लिए, एक होता है कि डेटा एनालिटिक्स और हम्म। बिजनेस एनालिटिक्स। राइट। मतलब
ऑन एन एवरेज 250-300 बच्चे हैं यूसीडी में। मैं लास्ट ईयर कॉलेज में गया था हाँ। कुछ फंक्शन के लिए। 250 स्टूडेंट्स इन डेटा एनालिटिक्स, आप वॉल्यूम सोचो, इन द सेंस करेक्ट। कि कितने कॉम्पिटिटिव कॉलेज में 250 बच्चे हैं, तो मतलब क्या लेवल के बच्चे होंगे। राइट राइट ठीक राइट है। राइट। डेटा एनालिटिक्स है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है जो हम्म। काफी सारे लोग पढ़ रहे हैं आजकल। चल रहा है, ठीक है, करेक्ट। जो बहुत बहुत फेमस हो गया है। यूसीडी का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वैसे ही बहुत अच्छा है। राइट। ठीक है। एक दूसरा कोर्स है एमएससी इन मैनेजमेंट, जो बहुत जनरल मैनेजमेंट है। ओके। इसके अलावा यूसीडी जो सबसे ज्यादा फेमस है, दो कोर्स है, एक है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, दूसरा है एमबीए। एमबीए, ओके। हाँ, यूसीडी का एमबीए में मिलना बहुत मुश्किल है, तो आपका राइट। जीमैट स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। कट ऑफ इज वेरी हाई, आई नो, आई नो। वेरी हाई, 690 यस। प्लस है कट ऑफ तो। करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक है। एंड अगर आपको जीमैट में 100, फॉर एग्जांपल जिसको नहीं पता, जीमैट समझ लो 100 मार्क्स का पेपर है। अगर मुझे 100 ऑन 100 भी है जीमैट में, तो भी आपको यूसीडी मिलना गारंटी नहीं है। आपका प्रोफाइल उतना अच्छा होना चाहिए। होना चाहिए, दे लुक एट द ओवरऑल प्रोफाइल एक्चुअली। हाँ, ओवरऑल प्रोफाइल। सो एनीवेज, दिस इज फॉर द टेकीज। For non-techie people, the courses which are very popular is MSc in Management, which I told you right now. That is very popular. SEMS program जो होता है, तो काफी बच्चे सेम्स प्रोग्राम के लिए पढ़ने आते हैं। दूसरा जो बहुत पॉपुलर है यूसीडी में, फूड एंड बायोटेक्नोलॉजी जो है। यहाँ पे फूड इंडस्ट्री बहुत बड़ा है करेक्ट आयरलैंड में, करेक्ट। क्योंकि आप यूरोप में देखो प्रोसेस्ड फूड ज्यादा ही चलता है। राइट। तो फूड इंडस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी काफी बड़ा है। दूसरा कोर्स जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, डिजिटल मार्केटिंग। राइट। मतलब इंडिया में से मुझे लगता है मेजोरिटी स्टूडेंट्स डिजिटल मार्केटिंग पढ़ने यहाँ पे आते हैं और फिर एजेंसी में काम करते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो दीज आर सम ऑफ द कोर्सेज विच आर वेरी पॉपुलर। I think you know what, one of the major concern, probably I would say that the people, the students who are moving to Germany, Italy, or might लैंग्वेज। as well France, yes, that's the language. Because I have come across many students of mine who moved to Germany. They said problem is social life because people do not speak English. That's the issue. मैं उसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप कभी डबलिन, सिटी सेंटर है डबलिन का, Hmm. सुबह 10:30-11 बजे है ना, कोई वीकेंड में चले जाना, Hmm. आपको मराठी सुनाई देगा। Right. A lot of, yeah, people from Maharashtra are there, like our आप community is there in मैं Vijayanagara. मतलब कितनी बार सिटी जा रहा हूँ, मैंने मलयालम सुना है एक लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में मराठी सुना है। मतलब Correct. मैं तो बॉम्बे से हूँ, तो आई स्पीक मराठी वेरी फ्लुएंटली। Hmm. तो Hmm. मतलब मैं ऐसा आजू बाजू देखता हूँ। मैं कभी कभी मेरी वाइफ को बोलता हूँ, मैं बॉम्बे छोड़ दिया था ना, कब छोड़ा था याद भी नहीं, Right, अभी ये right, सब सुन ही right. रहा हूँ यहाँ पे। Indians are everywhere now. Abhi, हाँ people are हाँ। getting in those countries in large numbers. Because now we are a growing up economy, anyways. करेक्ट। Uh, Last but not least, I just the purpose of making this video. Of course, I'm having this series with you, with Hussein, with Daisy. There are a lot of students, the brilliant people who are in those ऐसा countries. ब्रिलियंट तो नहीं है, बट ठीक है। ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से तो ब्रिलियंट ही है बॉस। मतलब तूने सोचा वो, बिकॉज जिस टाइम में बच्चे लोग कनाडा कनाडा कर रहे थे, यू टुक अ डिफरेंट स्टेप, सो दैट समथिंग दैट रिक्वायर दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड। एनीवेज, तो ये सीरीज बना रहे हैं हम लोग, और हमारा मकसद ये है कि जैसे किसी को आयरलैंड में जाना है तो दैट इनसाइड, मैं इसके अलावा भी और कुछ पॉडकास्ट करूंगा आपके साथ में फ्यूचर में। As in, there are a lot of policies which are changing these days for हम्म। Irish हम्म। visa, and they are becoming very strict. हम्म। They're हम्म। not giving visa as it is what they used to give it back in 1718. उनको भी या पता है कि people are getting into the large numbers, so they have to cut down somewhere to आई थिंक माई ensure टाइम that वी हैड 30% रिजेक्शन रेट। now अभी तो right now, अभी तो बढ़ गया रहेगा। नहीं अभी तो इतना बढ़ा नहीं है, लेकिन द ओनली थिंग इज दैट अवेयरनेस नहीं है पब्लिक। और आईटी वाले बच्चे, they always prefer US more than Ireland, because 100%। हाँ, US is a huge land, greater opportunities. So, इट्स लैंड uh, ऑफ अपॉर्चुनिटीज ना। correct, correct, correct. It's always been a dream destination for the people, या। US. Anyways, तो वही मकसद है कि मतलब ये हम लोग बना रहे हैं सीरीज, और probably I'll bother you. You never know, some of my students will drop you a message. Hey या। Prashant, I just need to know some information. So please, as a community, as a part of a community, I think it's our social responsibility as well to help our people, whoever they are in any of the country across, right? So, या 100% सर। आई मीन yeah. I'll always be there to help students. Like even in Ireland, I go to my university at least once a month. Okay. I speak to a lot of Indian students because I understand you are away from home. So Correct. for most of them, I'm like a elder brother. I keep telling them, you have anything, Hmm. just give me a call. Even if you want to just talk. ठीक है, I Right, may not right. come and cook for you and all that. मतलब Correct. No, I obviously. can't. हाँ, इन द सेंस कि मतलब मैं इतना भी क्लोज नहीं हो जाऊंगा कि मैं आपके घर पे आके खाना खाऊं, बट हाँ तकलीफ हाँ। आए मुझे आप कॉल कर देना, आई एटलीस्ट गिव यू अ पेशेंट हियरिंग। देखिए
देखिए ऐसा है ना कि मतलब ऑब्वियसली कोई पैसा तो मांगता नहीं है, हाँ लेकिन सजेशंस और गाइडेंस भी ना मिलता नहीं है, प्रॉब्लम ऐसे है। हाँ। You can't even imagine. I got a guy to whom I have sent him to UK. Now हम्म his friend, he called me up and he said like, he's saying that मत आ इधर, बहुत हालत खराब है, ये है वो है। हम्म। And then next day I got to know from him only that I don't want him to come here just because he is my competitor. So एक ये भी होता है, you never know, but they don't have the right guidance. At the end of the day that is important, तो मैंने शुरू किया है आई and थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू नो कि आपको ऐसे लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मेरे टाइम पे भी थे ऐसे। हम्म। तो मुझे बोला था आयरलैंड में कुछ है नहीं, हम तो वापस जा रहे हैं, ये है, वो करेक्ट है, करेक्ट ऐसा करेक्ट वैसा है। करेक्ट। बट मैं हमेशा से सोचता था कि नॉर्मल मैन और नॉर्मल पीपल डोंट क्रिएट हिस्ट्री। हम्म। You करेक्ट। want to create history, you have to do something which you are not एब्सोल्युटली। comfortable with. And I was एब्सोल्युटली। okay to come back. Like मैं यही सोच के गया था, नहीं हुआ तो क्या हो गया, ठीक है ना, देखते चलो, पहले जाने तो दे, जाने के बाद देखते हैं ना। और as fate would have it, those guys left. They करेक्ट left Ireland. करेक्ट। They couldn't survive. I तो feel that somewhere a lot of people they were asking me this question कि Indians लोग क्यों जा रहे हैं बाहर. I हम्म mean, if you obviously you must be knowing about it, like back in 90s when हम्म। Chinese started moving to the American universities, like या they are या quite dominating still in America. हंड्रेड So what परसेंट what what happened is like a lot of communities, the younger people, they moved there, they got used to the technology and they started हम्म। implementing the same policies and same technology in their own country. करेक्ट। Today they are almost a superpower, of course. सर, So. ये Hmm, ना आपके ये पॉइंट पे ना, आई जस्ट ऐड दिस टू यू। मेरे hmm, बैच में hmm, मतलब 30 बच्चों का क्लास था, hmm, 15-16 इंडियंस थे। hmm. ठीक है, ऑलमोस्ट मेरा आधा क्लास इंडियंस ही था। हम्म। ठीक है, इन द सेंस कि मतलब आयरिश भी थे, ऑस्ट्रेलियंस भी थे, कैनेडियंस थे, पंद्रह हम्म। सोलह इंडियंस थे। हम्म। अब हम 15-16 में हम सिर्फ 4 जन बचे। अच्छा। बाकी सबने यहाँ पे काम किया, एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस लिया, अच्छा खासा पैसा सेव किया, इंडिया गए। बहुत सारे लोगों का खुद का स्टार्टअप है। ओके। ठीक है। ओके। बहुत सारे लोगों ने मतलब बड़े बड़े एमएनसीज में जॉब लिया है। करेक्ट। ठीक है, अब हम जैसे 4-5 जन ही हैं जो यहाँ पे हैं अभी। हाँ। बाकी सब चले गए वापस। राइट। उनका मैंने मेरा एक दोस्त है शारंग मित्तल, वो दिल्ली में है, उसका खुद का स्टार्टअप है। उसका स्टार्टअप ऑलमोस्ट मतलब स्टार्टअप का वर्थ ही कुछ 25-30 करोड़ का हो गया अभी उसका। ओके। तो ओके। मैंने उसको पूछा, तू पागल है क्या, अच्छे खासे नौकरी में यहाँ क्यों जा रहा है वापस? तो उसने बोला, मेरा इंटेंशन यही था, आओ राइट। काम करो, एक्सपीरियंस बनाओ, कॉन्टैक्ट्स बनाओ। मुझे अभी इंडिया से आयरलैंड आना नहीं पड़ेगा धंधा लेने के लिए। एब्सोल्युटली मैंने फैंटास्टिक, ऑलरेडी ये होना कांटेक्ट चाहिए। बनाया है। एंड आई वाज लाइक, यार तूने क्या प्लान किया है? तो उसने बोला, हाँ मेरा पहले से यही प्लान था। ऐसे मेरे 2-3 और दोस्त लोग हैं जो यहाँ पे काम किए, यहाँ के एमएनसी में अच्छा खासे पोजीशन पे थे। राइट और फिर सडनली इंडिया में वही एमएनसी में गए और एक पोजीशन ऊपर। राइट राइट राइट। एक्चुअली क्या मालूम है कि मुझे ऐसा मतलब मैं जो भी कोई बच्चा मेरे पास आता है काउंसलिंग के लिए, करियर काउंसलिंग और माइट एज वेल विच इज द कंट्री आई शुड गो, आई वुड वांट देम टू हैव देयर ओन रिसर्च एंड ऑफ कोर्स एजेंसीज है। हमें तो क्या है कि भाई तू कहाँ भी बोलेगा मैं तेरा काम कर दूंगा, बट तेरा रिसर्च क्या है? हाँ। अल्टीमेटली 2 साल 1 साल की पढ़ाई के बाद में व्हाट यू गोना बी डूइंग? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक दिस इज वी नीड टू ब्रेक अ मिथ, एज इन पीपल हैव दिस परसेप्शन कि नहीं नहीं मेरे को यूएस जाके सेटल होना है। सेटलमेंट निकालो दिमाग से, कनाडा जाके सेटल होना। आज कितने लोगों को कनाडा का पीआर, यू नो दैट राइट, अपने यहाँ से मिला है और फ्री में मिला है। मतलब वी वर डूइंग इट एवरीथिंग ऑनलाइन, यू गाइस वर से लेट्स डू इट और गेट इट फ्रॉम द यूट्यूब। थिंग्स आर अवेलेबल, पीपल आर देयर इन कनाडा, बट नाउ दे आर सेइंग लाइक अरे सर जॉब नहीं है। जो पहले गए तो ऑब्वियसली दे आर सेटल, बट अभी अभी जो बंदे जा रहे हैं दे आर स्ट्रगलिंग ओवर दैट। हम्म So what I'm trying to say that don't have this thought in your mind to settle हम्म down in a country. I हम्म। think the best thought is to work on your skill set. Do something करेक्ट। different. इंडिया में भी आके बंदे ऐसे हैं काफी स्टूडेंट अपने जो यूएस में पढ़े, they came back to India, especially when Trump was there in the last term, right? तो नॉट यहाँ पे सरप्राइज्ड। yeah, now these people were here in India and they're working at a very prestigious position, top notch position, and they're earning better than what they used to earn in US. हाँ Uh, सर, आई थिंक इट्स अ वेरी रॉन्ग कंसेप्ट कि सिर्फ यूएस में जाएगा तो ही तरक्की होगा करके। करेक्ट 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 ठीक है, करेक्ट। मतलब तरक्की तो खुद से डिफाइंड है ना। मतलब हम्म। आप ये मुझे बोल रहे हो कि अगर आप आईपीएल में खेल रहे हो, कोई टीम है जिसको क्रिकेट समझता है, मैं सिर्फ मुंबई इंडियंस के लिए खेला तो ही मैं अच्छा प्लेयर हूँ क्या आईपीएल में? वो अगर वो मैं समझ गया। राजस्थान के, हाँ मतलब मैं राजस्थान में खेला तो अच्छा प्लेयर नहीं हूँ? मतलब उस हिसाब से यशस्वी जायसवाल तो अच्छा प्लेयर है ही अच्छा नहीं। प्लेयर नहीं है, करेक्ट करेक्ट या। तो वो माइंडसेट एक्चुअली क्या होता है ना, हाँ पब्लिक का माइंडसेट, पब्लिक देख रही क्राउड कहाँ पे जा रहा है, कनाडा कनाडा कर रहे थे सब लोग, आज लग गई है कनाडा की, मतलब हालत खराब है। बच्चे जा रहे हैं, हाँ। देखो अभी भी स्मार्ट बच्चे, ऐसा नहीं है जिनको जाना है। मैंने भेजा भी सैनिका में भेजा बच्चे को, हम्बर में हम्म भेजा, हम्म कनाडा में देखो जिसको पढ़ना है फ्रॉम द राइट प्लेस एंड हम्म द पर्सन कैन मेक हिज ओन वे। हम्म Don't I'm saying that, yeah, if you have an opportunity,
ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन इट। अभी तू मेरे को हम्म बात बता, अभी यूके में जाते बंदे, आज के डेट में हम्म यूके में आपके पास में 12 लाख 15 लाख में एमबीए अवेलेबल है। जो पैसा आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हो आप यूके में भी कर सकते हो। यू हम्म गो देयर, यू गेन दैट वैल्यूबल एक्सपीरियंस वर्किंग इन द इंटरनेशनल मार्केट। और हम्म, वहां से कम बैक टू इंडिया इफ यू वांट, आपको जॉब तो अच्छा ही मिलेगा यहाँ पे। और अगर वहां से अपॉर्चुनिटी मिलती, देयर आर पीपल लाइक आई थिंक यू नो अंकुर, राइट? अंकुर या मूव टू कनाडा नाउ। ही वाज इन फ्रॉम यूके। यूके। हाँ, यूके, ही वाज वर्किंग यूके में, जॉब भी अच्छा था। हिज वाइफ इज आल्सो वर्किंग इन यूके। नाउ ही मूव टू कनाडा, ही गॉट अ पीआर एंड सॉफ्ट लैंडिंग किया कनाडा में। जॉब मार्केट देखा, लास्ट टाइम मैंने आप स्पोकन टू हिम, ही सेड लाइक मैं पहले मैंने रिसर्च वगैरह किया एवरीथिंग एंड देन ही गॉट सेटल्ड डाउन इन कनाडा। ही हैज अ जॉब इन हिज हैंड, पीआर लेके सेटल है बंदा। तो और क्या चाहिए। हाँ, तो अल्टीमेटली वही होता है कि एक माइंडसेट है पब्लिक का, और अपना एक्चुअली मतलब सर, हाँ मतलब इन द सेंस ना, मैं ये टॉपिक पे अगर मैं लास्ट एक मेरा एक ऐड करूँ ना, कंट्री तो अच्छा है कि बुरा है वो आपके रहने से ही होगा। करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक है, मतलब हम कितने सारी देखते हैं अमेरिकन या इंडियंस जो अमेरिका जाते हैं वो भी स्ट्रगल ही करते हैं ना। हम्म। ऐसा तो कोई मतलब मेरे को कोई ऐसा आप एक आदमी दिखा तो ये बोलेगा ये देश बेस्ट है क्योंकि यहाँ कोई स्ट्रगल नहीं करता है ही नहीं। राइट। मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग योर लाइफ इज टू स्ट्रगल। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, विच इज यू द हैव टू चूज वेयर यू आर ओके टू स्ट्रगल। yes, which is the best place to hang around in Dublin? Famous place? आई थिंक इन डबलिन राइट, सो देर इज अ स्ट्रीट इन सिटी सेंटर। ठीक है, Okay. वहां पे बहुत सारे मतलब डबलिन में एक्चुअली आप देखोगे तो पब्स बहुत है। Okay. ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल आयरलैंड में होता Oh, है। okay. Okay. हाँ, बियर का कंजम्पशन, मैंने ऐसे अल्कोहल नॉट विस्की रम बट बियर का कंजम्पशन, इट्स अ वेरी, सी दिस कंट्री इज अ वेरी फन, चिल, स्पोर्ट्स लविंग कंट्री। Okay. ठीक है, पीपल विल एंजॉय गोइंग टू अ पब विद देयर फैमिली, वॉच अ गेम ऑफ फुटबॉल। Only ठीक है, football. मतलब फुटबॉल, रग्बी, Okay. दो दो टू आर द बिगेस्ट, बट देन देयर इज गेलिक फुटबॉल एंड ऑल दैट। बट ये अपने टीम को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो हर हफ्ता टीम जहां खेलता है ये ज्यादातर लोग फॉलो करेंगे उनको। Right, right, right. तो मतलब अगर आप डबलिन में देखोगे तो ज्यादातर लोग अगर मतलब जो दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं तो ऐसी मैच के लिए जाके आते हैं। ठीक है, Hmm. इसके अलावा इंडियंस क्या है, आप आपस में अपने अपने घर जाते हैं। Okay. ठीक है, मैंने अगर खाना बनाया तो मैं मेरे चार दोस्तों को बुलाऊंगा कि Right, आजा right, यार मेरे घर पे गेट टुगेदर करते हैं, right, ये महीने right, मेरे घर हुआ तो अगले महीने उसके घर होगा। right, तो right. मतलब अभी आई एम एट दैट एज ऑफ लाइफ वेयर आई एम मैरिड, आई हैव अ किड, आई हैव नो अदर इंटरेस्ट इन लाइफ मतलब। Adeline तो is अभी also totally fine. हाँ मतलब फैमिली फैमिली अभी रहता है। दैट इज वन। इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स आई स्टिल प्ले, तो मतलब यहाँ पे तो मैं क्लब खेलता हूँ क्रिकेट। तो यू कैन ऑलवेज परसू योर स्पोर्ट्स, You told मतलब me about यहाँ। one cricketer, no, that he plays for Ireland. You know, you guys were practicing with him. Who was जॉश that लिटिल, cricketer? Huh? Josh Little. Ah, yes, he's a bowler. Right. I yeah, know he's a that. bowler. So I I know play that. the same club as Josh Little plays, in the same team. Okay. The club is called as Pembroke. Okay. It's one of the oldest clubs in entire world. It's a club established in 1675 by the Duke of Pembroke, एक ब्रिट बंदा था Correct. जिसने आयरलैंड में एस्टैब्लिश किया था। तो Duke, वो क्लब Duke है। as in king of that region. हाँ Yeah, yeah, correct. हाँ, मतलब Emperor. उसने लैंड दिया था, वो क्लब हो गया बाद में। तो कब से है तो ऐसे। सो मेरा बोलने का यही मतलब है कि आयरलैंड एज अ कंट्री आपको टाइम देगा आपका पैशन परसू करने के लिए। Correct, correct, ठीक है, वो आप पे है आप क्या करते हो। जैसे मेरे दोस्त हैं, मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूँ मेरे फ्री टाइम में। मेरे correct. कुछ सारे दोस्त हैं जो घर पे बैठ के टीवी देखते हैं, मतलब हर एक का अपना अपना शौक है। Right, right, अ, right. कुछ लोग मेरे दोस्त लोग हैं जो बुक्स पढ़ते हैं, कुछ लोग हैं जो गार्डनिंग में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, एक एमएनसी में वो वाइस प्रेसिडेंट है, उसका शौक अभी गार्डनिंग है। तो वो Correct. गार्डनिंग करता है उसके फ्री टाइम पे, मतलब वो झाड़ लगाएगा, क्लाइंबर्स लगाएगा, रोप्स लगाता है घर पे। तो लाइक आई सेड, आयरलैंड इज अ वेरी फन लविंग कंट्री। आपको जितना मतलब आपके पास जो जो पैशन है आप सब फॉलो कर सकते हो। Right. आपके पैशन पे यहाँ कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखना है, ठीक है, आपको एकदम एकदम वियर्ड लैंग्वेज सीखना है, आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा, यहाँ कोई ना कोई मिलेगा। अच्छा। उतना एक्सेसिबल है ये कंट्री। हम्म। प्लस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस तो बहुत हैं आयरलैंड में, मतलब आप अगर आप आयरलैंड मैप में देखो, वर्ल्ड में तीनों साइड पानी है आयरलैंड के। Right. तो बहुत ब्यूटीफुल है So आयरलैंड Northern मतलब। Ireland is not a part of Ireland, right? Is it a part नो of, नो it नो, is a part of UK, right? करेक्ट, इट्स पार्ट ऑफ यूके। Okay. मतलब यहाँ पे उनका इंडिया पाकिस्तान का हिसाब है। Right, दे right, बोथ right. डोंट लाइक ईच अदर। Correct. दैट्स पॉसिबली बिकॉज वन इज अ वेरी राइटिस्ट कंट्री एंड द वन इज अ वेरी डेमोक्रेटिक और नॉर्मल कंट्री, Democratic. हाउएवर Correct. यू वांट टू कॉल इट, राइट। सो Correct. Correct. बट आई थिंक like my experience in Ireland so far, touchwood, hasn't been disappointing, and this place will always remain special for me no matter whichever country I move to, or
मतलब मैं आज यहाँ हूँ, कल समझो कोई और देश चला गया, वर्क रिलेटेड या वॉट एवर रिलेटेड, बट दिस करेक्ट। प्लेस इज वेरी स्पेशल बिकॉज आपको इतने जेन्युइन, ऑनेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट अच्छे ह्यूमन बींग्स नहीं मिलेंगे। ओके। आयरिश पीपल आर वेरी ऑनेस्ट। ओके। स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल। हाँ, मतलब बीट वर्क, बीट पर्सनल लाइफ और बीट योर फ्रेंड सर्कल, दे आर वेरी ऑनेस्ट। अगर वो आपको पसंद नहीं करते तो आपको बहुत जेन्युइनली बोलेंगे, देख यार तेरी और मेरी नहीं बनती, हम फोकट दुनिया को दिखाने के लिए बात नहीं कर सकते, करेक्ट। लेट्स नॉट डू इट, दे विल टेल यू वेरी अपफ्रंट। बहुत कम लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है। मतलब यूजुअली वो लोग बहुत चिल लोग हैं, उनको सबके साथ मिलना रहता है, उनको इंडियन खाना बहुत पसंद होता है। तो और इंडियंस एज अ लोग ही उनको बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है यार तू शादी के बाद माँ बाप के साथ कैसे रह सकता है, तो उनको एक हाँ, राइट। फैसिनेटिंग दैट एस्पेक्ट है वो। कल्चरल डिफरेंस। हाँ, तुम्हारे देश में इतने स्टेट्स कैसे हैं, तुमको हम्म। 6 वेदर्स कैसे मिल सकता है एक साल में, करेक्ट, और करेक्ट। तुम इतने लैंग्वेजेस एक ही, अभी फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ माय आयरिश फ्रेंड्स ऑलवेज आस्क मी, अरे तू हिंदी बात करता है, इंग्लिश बात करता है, मराठी बात करता है, तो तेरा हाँ, मलयालम मेरा मदर टंग है, वो बात करता हूं मैं, हाँ, हाँ। तो तू एक आदमी इतने लैंग्वेजेस कैसे सीख सकता है? देन वी एक्सप्लेन कि अरे इंडिया में ऑन एन एवरेज एक आदमी 3 से 4 लैंग्वेज बात करता बात है। करता ही है, ऑब्वियसली है, हाँ, दैट्स तो दैट्स इनके लिए व्हाट। वो सब बहुत शौक है, तो इसलिए ना करेक्ट। उनका क्यूरियोसिटी बहुत रहता है। हम्म। तो करेक्ट, आप इनसे कभी नेगेटिव चीजें फील नहीं करोगे, अनटिल ओके। अनलेस आपने कुछ नहीं किया, ऑब्वियसली फिर कोई चुप नहीं बैठता। करेक्ट, 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 करेक्ट। But वेल। yes, Ireland is very welcoming. So I would urge all students that if you are coming to this country, research your college and just see what you want to study. It's a beautiful country to live in. Okay, Prashant, thanks so much. Thanks for sparing time for me. No And problem, sir. we'll probably have more and more interviews, the podcast in the future. I might also wanted to see Anjali sometimes in the future too. Sure.